Okay, very good afternoon, good morning, everyone. Sorry. So, yesterday we have discussed some questions from both of the exercise. Today we'll continue with the next exercise, which is we have 11.2. Some of the questions are here wherein you may face problems. So, let us discuss some questions from this chapter. Okay. So, first up to question number 3, 4, I think we have done. So, let's move to the question number 5 of exercise 11.2. So, except this, if anyone having any else doubt, you can ask. I am discussing question number 5 of exercise 11.2. So, from 11.1 or from 11.2 up to question number 4, if anyone having any doubts, please ask. अगर किसी को भी कुछ डाउट्स है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक या 11.1 से कोई भी क्वेश्चन का, तो प्लीज आस्क. नो डाउट्स. वेरी नाइस. Rupam Kumar is saying no doubts. Please write your name instead of your parents' name. Why you all are using your parents' name? रूपम कुमार पेरेंट्स नेम लिख के रखे हो, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5. प्रवीण बॉट ए वॉच. सो प्रवीण बॉट ए वॉच. प्रवीण एक वॉच खरीदते हैं फॉर रुपीज 2140 rupees and sold it for rupees 3104. So find sorry, this is question number 4. So Praveen bought a watch for 2140 and sold it at a gain of, and sold it at a gain of 10%. So find the selling price of the watch. Selling price of the watch. So question, try to understand the question first. It's very simple. The cost price is given. Praveen bought a watch, means cost price is 2140 and sold it at a gain of 10%. मतलब the selling price is at a gain of 10%, means he is not losing here, so his gain is 10%. So find the selling price. So gain means profit only. Okay, so 10% off this means how much? First you have to find out. So 10% of rupees 2140 means 10 divided by 100 multiply 2140, right? So 1010 cancel, 1010 cancel. So rupees 214 is the profit amount. So this is the gain amount, 10% of this much. So this is the gain he is earning. Now find the selling price. So what will be the selling price? The cost price plus the gain amount, whatever the profit amount. So selling price you can find out as P is equal to CP, cost price, plus gain, or you can write profit. Gain or profit. So cost price was rupees 2140 plus gain is rupees 240. So after adding you will see rupees
4, 4 plus 1 is 5, 2 plus 1 is 3, so 2, 2354. Show 2354. Question number 5 of 11.2. I hope everyone understood. 2354 rupees will be the required answer. So very easily आप इस तरह से कभी भी गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ भी दिया हुआ रहे और सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो, या तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहे और गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो आप जो है कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो इसी कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस वेरी सिंपली 10% ऑफ दिस इज दिस मच रुपीज, सो सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. गुड मॉर्निंग. Another name of profit is gain. Okay, yes, good. Yes sir, understood. Very nice. Ayushi Raj, then Ankush. Okay, very nice. So everyone please ask. अगर इसके अलावा किसी को कुछ और डाउट्स हो अभी तक में, नो डाउट्स. आर्यन आनंद, ओके, वेरी नाइस. नो डाउट्स. आयुषी ऑल्सो, अभिज्ञान ऑल्सो, ओके, वेरी नाइस. विद्यावानी, नाइस. ओके, सो this is all about 5. Let's move to the next question which we have is question number 6. Question number 6 is slightly interesting, and if you not understand, I mean if you not listen carefully or if you not try to understand carefully, you will not be able to understand this question. So very carefully listen what this question is asking and try to understand, and then only you can able to solve. So very difficult question, very dangerous question, but very easy question if you understood. I am talking about question number 6 of exercise 11.2. So first most important thing to understand the question. So 6 number question is asking a man bought, एक आदमी है जो खरीदते हैं 360 eggs, 360 एग खरीदते हैं. 360 eggs he is purchasing at rupees 12 per dozen. इसका मतलब ये होता है कि 12 रुपीज जो है वो 12 एग का प्राइस है, ठीक है. तो 360 एग का प्राइस क्या हो जाएगा? 360 रुपीज हो जाएगा, ठीक है. नाउ उसके बाद क्वेश्चन ये है कि 60 एग्स वेर ब्रोकन डाउन. अब नॉर्मली होता क्या है, क्योंकि एग है तो जो भी एग का बिजनेस करते हैं उसके साथ इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कुछ एग्स होता है जो टूट जाता है, कुछ एग्स होता है जो खराब हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे इनके साथ भी वही हुआ है कि 60 एग्स जो था, 60 एग्स आर ब्रोकन डाउन. 60 eggs were broken down. साठ एग जो है इनका टूट जाता है, ठीक है. एंड 30 eggs were rotten. खराब हो जाता है, सड़ जाना. So find his profit और लॉस. ये यहां पे दिया हुआ नहीं है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. परसेंट. सो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है. इफ ही सेल्स द rest of all eggs at rupees 15 per dozen.
Why I am telling this is very important or very difficult, because I still remember last time maximum of the students done mistakes in this question. So first try to understand again. एक आदमी है जो 360 eggs खरीदते हैं, eggs का प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस रहता है 12 रुपीज पर डजन. देन 60 eggs जो है वो खराब हो जाता है, सॉरी 60 eggs टूट जाता है और 30 eggs खराब हो जाता है, तो मतलब 90 eggs जो है उनका बर्बाद हो जाता है, जो वो बेच नहीं पाता है, जिसके लिए उसको कोई अमाउंट नहीं मिलता है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास पहले 360 eggs था, उसमें से जो सेलिंग के लिए बचेगा वो 90 घटा के जो होगा वो बचेगा. ठीक है, अब जो है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. तो प्रॉफिट पहले तो देखना है कॉस्ट प्राइस कितना है, फिर देखना है सेलिंग प्राइस कितना है, ज्यादा होगा या कम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. उसके बाद हम लोग जो है इसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका जो है कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस of CP, or directly I am writing CP only. So cost price is equal to, because 12 rupees per dozen means 1 rupees per egg, so 360 egg he is purchasing, so rupees 360 will be the cost price. Very easy, क्योंकि 360 अंडा है, 12 अंडा का दाम 12 रुपया है, तो एक अंडा का दाम 1 रुपया होगा. The price of 1 egg will be 1 rupees and price of 360 eggs will be 360 rupees. So this is how cost price we got 360 rupees, right? Now अभी क्या होता है कि 60 और 30 इतना egg जो है वो रोटेन और ब्रोकन हो जाता है. ठीक है, so now 60 eggs were, और हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लेना कि नाउ 60 eggs were broken down and 30 eggs were rotten, therefore eggs left. So eggs left, जो एग बचे हुए हैं बेचने के लिए वो है 360 माइनस 60 प्लस 30 मीन्स 90. ठीक है, तो 360 माइनस 90 कितना होगा 0. 9 plus 6 is 9 plus 1 is 10, 1 plus 6, so 7 270. तो 270 eggs will be left. 270 eggs बचेंगे हमारा सेलिंग करने के लिए. ठीक है, अब जो है यहां पे दिया हुआ है कि इफ ही सेल्स द रेस्ट ऑफ ऑल एग्स एट 15 रुपीज पर डजन. तो यहां पे समझने वाला बात है कि पर डजन का प्राइस 15 रुपीज है. इसका मतलब ये है कि द प्राइस ऑफ 15 एग्स इज इक्वल टू, सॉरी, द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज इक्वल टू 15 रुपीज. तो यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं द प्राइस ऑफ 12 एग इज इक्वल टू 15 रुपीज, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है तो एसपी लिखेंगे हम लोग. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग्स इज इक्वल टू रुपीज 15. 15 रुपया 12 एग का है, तो एक एग का प्राइस क्या हो जाएगा यूनिटरी मेथड. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग विल बी इक्वल टू रुपीज 15 डिवाइडेड बाय 12. सो ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा एक एग का. ठीक है, अब अगर एक एग का सेलिंग प्राइस इतना होता है, अगेन सेम द यूनिटरी मेथड हम लोग यूज करेंगे. द प्राइस ऑफ 270 एग्स विल बी हाउ मच. सो देयरफॉर द प्राइस ऑफ 270 एग्स will be 15 divided by 12 multiply 270. तो अब जो है इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे. सो कितना में जाएगा 3 4 are 12, 3 9 are 70, 27, 3 9 are 27. So 0 4 4, so 2 times it will go, 2 2 are 4, 2 45 are 90 na, 2 45 are 90. So 15 multiply 45 by 2, okay,
So 15 multiply 45 by 2 means just multiply here. 15, 45 are how much? 5 5 are 25. 2 5 1 are 5, 2 7. 4 5 are 20. 0 1 carry. 4 1 are 4 5. So 5 7 5. So 575 divided by 2. 575 divided by 2, this much of rupees is the price of 270 eggs. तो इसको डिवाइड करके हम लोग देखते हैं डेसिमल में कितना आएगा. डेसिमल में कितना आएगा? 575 divided by 2. So 2 2 are 4, 1 7. So 7 2 are 14, 8 2 are 16, 8 2 are 16. 1 5 7 2 are 14, 7 2 are 14, 1 decimal 0 5 2 are 10. So 287 decimal 5. So 287 decimal 5 this much of rupees. तो यहां पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस जो था वो था 360 रुपीज. अब सेलिंग प्राइस हम लोग का हो गया 287 डेसिमल 5 रुपीज. तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या है? लेस हुआ है. दिस इज द सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस से लेस है तो हमारा लॉस हुआ है. ठीक है, तो हम लोग को यहां से पता चल गया कि दिस इज द लॉस हैपन. सो लॉस निकालने के लिए हम लोग को पता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे लॉस. इसको समझने का कोशिश कीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाला. कॉस्ट प्राइस अगर 12 एग का प्राइस 12 रुपीज होगा तो 1 एग का प्राइस होगा 1 रुपीज. सो 360 एग का प्राइस होगा 360 रुपीज. ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 360 रुपीज आ गया. अब एक हम लोग के पास जो बचेगा, क्योंकि 60 और 30 जो है एक बर्बाद हो गया है, तो 360 में से माइनस करेंगे तो 270 एक हमारे पास बचे हुए हैं सेल करने के लिए. अब ये दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है एक डजन का, मतलब 12 एग्स का सेलिंग प्राइस 15 रुपया है, तो एक एग का हो जाएगा 15 बाई 12 रुपया. ठीक है, तो 15 बाई 12 रुपया मतलब 270 का जो हो जाएगा 15 बाई 12 मल्टीप्लाई 270 रुपीज. ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास जो सेलिंग प्राइस निकल के आया वो 287 डेसिमल 5 आया. तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस से लेस में है, तो इसका मतलब हमारा लॉस हुआ है. कितना लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट. हियर आई एम राइटिंग द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं रुपीज 360 था. सेलिंग प्राइस तो हमें यहाँ पे मिल गया, तो सेलिंग प्राइस भी हम लोग वहां पे लिख लेते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग ने फाइंड आउट किया एस पी रुपीज 287 डेसिमल 5. अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कुछ कुछ प्रोसेस का. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग लग सकता है. तो यहाँ पे अभी लॉस हम लोग का होगा, कितना लॉस होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सो 360 माइनस 287 डेसिमल 5, दिस मच ऑफ रुपीज. तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा? 360 and 287 decimal 5, decimal nothing means 0, so 5 2 okay 9 10 10 12 13 14 15 16 7 0 720 72 decimal 5, 72 decimal 5. So 72 decimal 5 is the loss amount. ये हमारा लॉस हो गया. अब परसेंटेज ऑफ लॉस बोला गया है निकालने के लिए. तो लॉस परसेंटेज निकालने का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, राइट? सो देयरफॉर लॉस परसेंटेज is equal to cost price is 72.5 divided by cost price is 360. So 360 multiply 100%.
ठीक है, 1010 कैंसिल। सो अब आप लोगों को भेज दूंगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है यहाँ पे तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच में भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पे हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में है, इसमें पूछा जा रहा है एक कार है जो कि रुपीज 1 2 3 4 50 how much? Ones, tens, hundred, thousands, 10,000, lakhs. So 8 lakhs. 8 lakhs is the price or cost price of the car. So a car what this is sold. So this much is the cost price of the car. So which is sold at a loss of 15%. तो 15% का लॉस में इसको बेच दिया जाता है। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार का सेलिंग प्राइस निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट मी सी हु कैन आंसर दिस। कौन इसका आंसर कर सकते हो करेक्टली? लेट मी सी, ट्राई टू आंसर एवरीवन। सभी इसका आंसर फाइंड आउट करने का। नैना कुमारी, ओनली क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज। व्हाट नैना, व्हाट यू आर सेइंग? ओनली क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2। व्हाट? We have already discussed the previous questions. If you have not attended, Naina, then go and watch the videos. In the pocket study, all the videos are there. So बाकी सब क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी इससे पहले ही। ठीक है, ओके। सो दिस क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। Okay, we don't have so much time, so let us see. So a car or this, so this is the cost price of the car. So CP is equal to rupees 8 lakhs. Okay, now is sold at a loss of this much. So loss percentage is equal to 15%. Okay, so what is the selling price? That's all. So 15% of cost price you have to find out. That is how you can find out the loss. Therefore, loss is equal to 15% of 8 lakhs. So 15% of 8 lakhs means 15 divided by 100 multiply 8 lakhs. So here 20 will be cancelled. यहाँ पे ज्यादा हो गया एक 0. So 20 will be cancelled. So 15 multiply 8,000. So whatever you will get after multiplying this much will be the loss amount. So loss amount निकलने के बाद हमको क्या निकालना है? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? अगर लॉस दिया हुआ रहे और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे तो सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा दैट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे सब घटा के हम लोग कर सकते हैं। दैट लेस देन दैट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस सेक वंस व्हाट विल बी दैट मच विल बी द लॉस अमाउंट। ओके, Okay, so that's all for today. Be ready for your next period. Thank you everyone. Anyone having any doubts, any problem, you are welcome to ask anytime. Okay, we will discuss the rest of all if anyone having any else doubt in our next class. So thank you. Okay, thank you everyone. Bye bye. Take care of yourself.